Assalamu alaikum students. Welcome again. It's another lecture on the play Progress that is written by um, John Greer Ervine. Before going to start today's lecture, let us recall our previous lecture a bit. So here are a few important points from our previous lecture. Mrs. Melton asks about the invention. Uh, and Professor Corey calls his invention a humanitarian invention. And Then we can also see that why he called it a humanitarian invention, because of the fact that he says that his invention would reduce or limit the duration of the war. So, in that sense, it's a humanitarian invention, and by seeing the deadly consequences of the war, uh, nations will try to, avoid war. So, in this sense, it is a humanitarian invention. Then Professor Corey talks about his formula, combination of gases and explosives, etc. And he also justifies himself and his invention by calling it a highly patriotic act that is done in the service of nation. And Then there is another point that he is preparing for the next war, and that is very important point because he's already predicting the upcoming war. And Professor Corey's prediction of war, that is that he says that in next 20 to 30 years and or up to 50 years there will be another war, and he's preparing for that. And he aims at making such an explosive bomb that will obliterate all cities, perhaps a whole nation. And he wants to make his country more strengthened by his invention so that no other country may get an upper hand over his own country. And his bomb will wipe out the population of big cities. He's planning to make such an explosive bomb, such a deadly bomb that will, within seconds, within minutes, it will wipe out the entire cities. And then there is no logical distinction in the war between a civilian and soldier. This is again very true in the war. Everything is fair in love and war, and nobody distinguishes a child, or a man, or a young boy, or a woman, or soldier. They are all equal for their enemies. So it is the war is fought indiscriminately. Then we can also see another important point that Mrs. Belton called him dull and unimaginative fool, and um, she also explains how excited they were at Eddie's birth and the way they brought him up to become a great man. Okay, so in today's lecture, we'll start off from the third line of here. Mrs. Melton and we made plans for him. और मिसेस मेल्टन ने कहा कि हमने उसके लिए मंसूबा बंदी भी की थी, हमने उसके लिए मंसूबे बनाए थे. ही वॉज टू बी ग्रेट एंड लाइक्ड पर्स एंड लाइक्ड. हम अब एडी की बात करिए कि एडी एक अजीम आदमी बन उसको एक अजीम आदमी बनना था और एक पसंदीदा आदमी बनना था. पीपल डिड लाइक हिम और लोग उसको पसंद भी करते थे. इवन यू लाइक्ड हिम और तुम भी पसंद करते थे. हेनरी डिडंट यू? हेनरी को कह रही है कि तुम भी पसंद करते थे. ठीक है. कोरी यस आई लाइक्ड हिम. कोरी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल उसे पसंद करता था. ही वॉज एन अट्रैक्टिव बॉय, वो एक दिलकश लड़का था. बट डोंट यू थिंक मिसेस बट यू डोंट यू थिंक अब वो अपनी बात अभी आगे वो कर रहा था कि मिसेस मेल्टन का डायलॉग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और मिसेस मेल्टन कहती है एंड देन ही वाज इल, और फिर वो बीमार हो गया. यू रिमेंबर हाउ वी ऑल थॉट दैट ही वुड डाई. कि तुम्हें याद है कि किस तरह हम सब ये समझते थे कि वो मर जाएगा. एंड टॉम, पुअर टॉम, हु नेवर कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेरी एप्टली. और टॉम, बेचारा टॉम, टॉम इसका हस्बैंड जो है, who never could express himself very aptly, जो कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर सही तरीके से अपनी जज्बात का इजहार नहीं कर सका, अपने आप को अपने अपनी उन एहसासात का इजहार नहीं कर सका. वेंट अबाउट एज इफ ही वाज स्टन्ड. वो इधर उधर घूम रहा था जैसे कि वो दंग रह गया हो, यानी उसकी बीमारी की वजह से वो जैसे दंग रह गया, स्टन, बिल्कुल हैरान हो गया और एक्सप्रेस नहीं कर सकता था अपने आप को. आई कांट टेल यू व्हाट आई थॉट देन हेनरी. मैं तुम्हें नहीं बयान कर सकती कि मैंने उस वक्त क्या सोचा था हेनरी. आई जस्ट कांट टेल यू. मैं बिल्कुल तुम्हारे आगे ये चीज़ बयान नहीं कर सकती. बट ओ, लेकिन हाँ, आई प्रेड फॉर हिम हेनरी. मैंने उसके लिए दुआ की थी हेनरी. प्रेड फॉर हिम दैट सो दैट माई होल माइंड वॉज अ प्रेयर. मैंने इतनी दुआ की थी कि मेरा पूरा जहन, पूरा दिमाग उसके लिए दुआ बन गया था. यानी ऑल द टाइम आई वॉज प्रेइंग फॉर हिम. वेल ही गॉट बेटर.
और फिर वो सेहत वेल ही गॉट बेटर, और फिर वो सेहतयाब हो गया, एंड सीम टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, और फिर वो सेहतमंद भी हो गया। एंड एट स्कूल ही डिड वेरी वेल, और स्कूल में भी उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। आई कैन सी नाउ, मैं देख सकती थी कि द फर्स्ट टाइम ही प्लेड, आई कैन सी नाउ मैं अब भी देख सकती हूँ कि द फर्स्ट टाइम, कि पहली दफ़ा ही प्लेड, जब उसने खेला क्रिकेट मैच खेला, वेरी प्लीज विद हिज ब्लेजर, वो अपने रंगीन जैकेट को देख के बहुत खुश था। एंड हाउ एक्साइटेड, रंगीन जैकेट पहने हुए बहुत खुश था। विद हिज ब्लेजर, रंगीन जैकेट, ब्लेजर जैकेट को कहते हैं, रंगीन जैकेट पहने हुए वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। एंड हाउ एक्साइटेड ही वॉज when he came to tell me that he had made 10 runs, और वो कितना पुरजोश था जब उसने आके मुझे बताया कि उसने 10 रन्स बनाए हैं मैच में। 10 runs he made, my little son, मेरे छोटे बच्चे ने 10 रन्स बनाए हैं इन हिज फर्स्ट क्रिकेट मैच, अपने पहले ही क्रिकेट मैच में। ऑल द अदर बॉयज ऑफ हिज एज वर वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिम, और उसकी उम्र के यानी हम उम्र जो लड़के थे वो सारे उसका बहुत इख्तराम करते थे। एंड आई वॉज सो ग्लेड व्हेन ही लेट मी वॉक अबाउट विद हिम, और मैं बहुत खुश होती थी जब वो मुझे अपने साथ चहलकदमी करने देता था। लेट मी वॉक का मतलब मुझे चहलकदमी करने देता था, विद हिम, अपने साथ। जस्ट एज इफ ही हैडंट हैड अ ट्रायम्फ, और ऐसा लगता था कि जैसे उसने कोई कामयाबी, कोई फतह हासिल नहीं की, यानी फिर भी वो एक आम कॉमन आदमी की तरह ही उसकी नेचर थी। फतह हासिल करने के बाद भी उसमें इतना इतना एरोगेंट, इतना प्राउड नहीं फील करता था, इतना गुरूर नहीं करता था। एंड टॉम वॉज वेरी फ्राइटफुली प्लीज्ड। फ्राइटफुली इज यूज फॉर एम्फिसिस, ये किसी बात के ऊपर एम्फिसिस देने के लिए यूज होता है। जैसे हम कहते हैं वेरी प्लीज्ड, तो यहाँ पे फ्राइटफुली प्लीज्ड, यानी इसका मतलब बहुत खुश। टॉम भी बहुत खुश था। एंड गेव हिम अ सोवरेन, और उसको एक सोवरेन कहते हैं सोने के सिक्के को, ठीक है, तोहफे के तौर पर। तो गोल्ड कॉइन उसको दिया टॉम ने भी। हर टीयर्स और कम हर, अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई ये बात स्टूडेंट्स, तो ये जो राइटर है उसकी बात है कि वो बताता है कि साथ साथ जब वो ये बात कर रही है मिसेस मेल्डन, तो उसकी आंखों पे आंसू उसके चेहरे पे आ जाते हैं। यानी ओवरकम का मतलब काबू पा जाना, बहुत ज़्यादा तादाद में आंसू आ जाते हैं। एंड शी रेजेज हर हैंड्स टू हर लिप्स इन अ जेस्चर ऑफ ग्रीफ, और वो गम की वजह से अपने हाथों को अपने होंठों तक बुलंद करके आंसू को पूछती है। माई लिटिल बॉय, मेरा छोटा बच्चा, यानी उसकी सारी मेमोरीज देखें वो अब उसको याद आ रही हैं। तो जिस तरह से वो बचपन से लेके अब तक वो अपनी सारी जो यादें उसको याद हैं उस बच्चे की, वो बता रही है। कोरी, दिस इज डिस्ट्रेसिंग यू माई डियर, डिस्ट्रेसिंग यू, ये तुम्हें परेशान कर रहा है मेरे मेरी प्यारी। डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर, इसके बारे में मजीद बात मत करो। मिसेस मेल्टन रिकवरिंग हर सेल्फ, अपने आप को, अपनी तबीयत को, अपने हवास को बहाल करते हुए। ही हैडंट बिन एट ऑक्सफोर्ड लॉन्ग व्हेन द वॉर बिगेन, कि वो ऑक्सफोर्ड में अभी इतना अरसा उसको नहीं हुआ था पढ़ते हुए कि जब जंग शुरू हो गई। एंड देन ही वेंट ऑफ, और फिर वो चला गया। एंड इनलिस्टेड, और उसका नाम शामिल कर लिया गया, यानी फेहरिस्त में जो जंग पे जाने वाले सिपाही थे उसकी फेहरिस्त में उसका नाम भी शामिल कर लिया गया। अभी उसने इतना लंबा अरसा नहीं हुआ था ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए। वी डिडंट नो वेदर टू बी प्राउड ऑफ हिम और टू बी एंग्री विद हिम, हमें समझ नहीं आ रहा था कि उस पर फ़ख्र करें या उस पर गुस्सा हों। यानी फ़ख्र इसलिए कि वो जंग में शामिल हो गया अपने मुल्क के लिए, और गुस्सा इसलिए कि वो अपनी तालीम को छोड़ के उधर चला गया। ये तालीम ख़त्म होते ही जल्द ही चला गया, इधर कोई और काम नहीं किया। वी डिडंट नो whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly we were proud, लेकिन ज़्यादातर यानी इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा हमें फ़ख्र ही महसूस हो रहा था। आई लव्ड हिम इन हिज क्लमजी यूनिफॉर्म, मैं उसको उसके उसके बेढंग यूनिफॉर्म में, क्लमजी बेढंग किस्म का जो उसका लिबास यूनिफॉर्म था सोल्जर का, उसमें वो बहुत प्यारा लगता था। एंड हिज ग्रेट रफ बूट्स, और उसके बड़े सादा किस्म के बूट। जस्ट एज मच एज आई लव्ड हिम लेटर ऑन ऑफिसर्स यूनिफॉर्म, इतना ही मैं उससे मोहब्बत उस वक्त भी करती थी जब वो एक सिपाही था, जितनी की बाद में जब वो ऑफिसर बन गया तो उस वक्त में मोहब्बत करती थी। एंड व्हेन ही वेंट ऑफ टू फ्रांस ट्राई टू बी वर्दी ऑफ माई सन एंड नॉट टू क्राई, और जब बाद में वो फ्रांस चला गया, ट्राई टू बी वर्दी, और मेरा एक काबिल बेटा बनने की कोशिश की, एंड नॉट टू क्राई, और रोया नहीं, यानी घर से दूर जाते हुए ना रो के उसने मेरा एक बहुत अच्छा और काबिल बेटा बनने की कोशिश की। इट फ्राइटफुली इट वॉज फ्राइटफुली हार्ड टू स्माइल, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं उस वक्त जब मेरा बेटा घर से जा रहा है तो मैं स्माइल करूं हेनरी, बट आई डिड स्माइल, लेकिन मैंने उसकी तरफ मुस्कराया। मुस्कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस वक्त।
अलहदगी के वक्त, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराई। आई फेल्ट दैट वॉज वट एडी वुड विश मी टू डू। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि एडी मुझसे यही तवक्को कर रहा है, एडी की यही ख्वाहिश है कि मैं उसको घर से रुखसत करते वक्त उसकी तरफ मुस्कुराऊँ, बजाय इसके कि मैं रोना शुरू कर दूँ। नॉट टू शेम हिम बिफोर अदर पीपल, और मैं उसको दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी कि एक सोल्जर जा रहा है और उसकी माँ रो रही है, तो मैं शर्मिंदा उसको नहीं करूँगी, कभी भी शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसकी तरफ मुस्कुराया कि मैं एक सोल्जर की माँ हूँ, एक सिपाही की माँ हूँ, और उसको मैं मुस्कुरा के अलविदा कहूँगी। एंड सो आई स्माइल्ड एंड मेड अ लिटिल सिली जोक अबाउट द फियर ऑफ द जर्मन्स व्हेन दे हर्ड ऑफ हिज अराइवल। और मैंने मुस्कुराने के साथ साथ असली जोक, एक अहमकाना मजाक भी उड़ाया। किसका? अबाउट द फियर ऑफ जर्मन, जर्मन के खौफ का। व्हेन दे हर्ड ऑफ हिज अराइवल, जब वो उसकी आमद का सुनेंगे, यानी जब जर्मन्स सुनेंगे कि मेरा बेटा आ रहा है जंग में, तो वो कितने डर जाएंगे। तो मैंने एक जोक भी जाते वक्त उसको सुनाया कि तुम्हारी आमद से तो जर्मन और ज़्यादा डर जाएंगे कि मेरा बहादुर बेटा जा रहा है जंग पे। ठीक है, बट आई वॉज इन टेरर हेनरी, इन ऑल द टाइम दैट ही वॉज अवे आई वॉज इन टेरर। लेकिन मैं खौफ में थी हेनरी, उस सारे वक्त में जब वो जा रहा था, जब वो दूर था मुझसे, तो मैं खौफ में ही थी। द साइट ऑफ अ टेलीग्राफ मैसेंजर मेड माई हार्ट सिंक। और उस जो टेलीग्राफ मैसेंजर है, जिस पे पैगाम, जिस पे आता था, राब्ता उनका होता था, उस मंज़र ने मेरा, उस मंज़र को देख के मेरा दिल डूब जाता था। मैं बार बार इंतज़ार करती कि उसका पैगाम कब आएगा। एंड देन ही केम होम इन हिज फर्स्ट लीव, ऑन हिज फर्स्ट लीव, और फिर वो अपनी पहली छुट्टी पे घर आया। एंड माई लिटिल सन वॉजंट माई लिटिल सन एनी मोर, और फिर मेरा छोटा सा बेटा अब छोटा नहीं था, बट अ स्ट्रेंजली ग्रोन मैन, लेकिन एक अजीब तर्ज में, एक अजीब से अंदाज में बड़ा आदमी था। यंग टू लुक एट, देखने में नौजवान, बट फुल ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज, लेकिन गैर मामूली इल्म से भरा हुआ। आई फेल्ट शाय विद हिम, मुझे उसके सामने शर्म आती थी, यानी इतना छोटा सा बेटा था, और अब वापस जब आया तो उसको इतना इल्म, इतनी चीज़ों के बारे में मालूमात हो गई, तो मुझे तो उसके साथ बैठने में ही शाय फील करती थी मैं। ही हैड सीन सो मच एंड न्यू सो मच, उसने बहुत कुछ देखा था और बहुत कुछ जानता था। एंड देन आई थिंक आई फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, और फिर इस बात को सोच के मुझे और ज़्यादा फ़ख्र होने लगा, देन एवर बिफोर, पहले से कहीं ज़्यादा, कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया, कितनी चीज़ें उसको आती हैं। बिकॉज ही वॉज अ मैन, मुझे इसलिए ज़्यादा फ़ख्र हुआ कि अब वो एक आदमी, एक मर्द बन गया। एंड आई कुड डिपेंड अपॉन हिम, और मैं उसके ऊपर इन्हिसार कर सकती थी। वी वर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट लीव, हम उन छुट्टियों में बहुत खुश थे हेनरी। सो दैट आई हार्डली हैड टाइम टू बी मिजरेबल बिकॉज इट वुड सो सून बी ओवर। और मेरे पास बमुश्किल ही वक्त था परेशान होने के लिए। मिजरेबल का मतलब परेशान, हार्डली बमुश्किल, यानी मैंने वो छुट्टियाँ खुश ही गुजारी, और बमुश्किल ही मेरे पास वक्त था कि मैं परेशान रहूँ उन छुट्टियों में, क्योंकि मुझे पता था कि इट वुड सो सून बी ओवर, कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। तो परेशान होने के बजाय मैंने खुशी खुशी वो सारी छुट्टियाँ जो है उसके साथ गुजारी। एंड व्हेन ही वेंट बैक, जब वो वापस चला गया, ऑल्दो आई क्राइड अ लिटिल, बावजूद इसके कि मैं थोड़ा सा रोई। व्हेन ही वॉजंट लुकिंग, जब वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, यानी जब वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, तो थोड़ा सा मैंने रोया भी, बट आई डिडंट माइंड सो मच, लेकिन मैं इतने परेशान नहीं हुई। डिडंट माइंड का मतलब यहाँ पे परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मैं परेशान नहीं हुई सो मच, इतनी ज़्यादा, एज आई थॉट आई शुड, जितना कि मैंने सोचा था कि मैं परेशान होंगी, यानी उसके जाने पे मैं इतना परेशान नहीं हुई जितना मैंने पहले सोचा हुआ था कि मैं हो जाऊंगी। बिकॉज आई परसुएडेड माई सेल्फ टू बिलीव दैट ही वुडंट बी किल्ड, क्योंकि मैंने अपने आप को कायल कर लिया था, परसुएड कर लिया था, कायल कर लिया था, टू बिलीव, किस बात पे यकीन करूं कि ही वुडंट बी किल्ड, कि वो मारा नहीं जाएगा। व्हेन ही हैड हिज सेकंड लीव एंड वाज अ कैप्टन, जब उसको वो अपनी दूसरी दोबारा छुट्टी पे आया और जब वो कैप्टन बन गया था, आई वाज श्योर दैट ही वुड कम होम टू मी क्वाइट सेफ, और मुझे यकीन था कि वो घर दोबारा आएगा बिल्कुल महफूज। इवन टॉम हु हैड ऑलवेज फेल्ट वी शुड लूज हिम, हत्ता कि टॉम, जो कि हर वक्त उसको यही एहसास रहता था कि हम उसको खो देंगे, अपने बेटे को खो देंगे, बिगन टू बिलीव, वो भी ये यकीन करना शुरू हो गया दैट ही वुड कम होम अगेन, कि वो घर दोबारा आएगा। यानी अब इन सब को यकीन दोबारा से हो रहा है कि उनका बेटा मारा नहीं जाएगा जंग में, बल्कि वो दोबारा दूसरी छुट्टी पे भी घर खैर खैरियत से बिल्कुल सेफ महफूज तरीके से आ जाएगा। बट ही डिडंट, लेकिन वो नहीं आया। इमीडिएटली व्हेन ही गॉट बैक टू फ्रांस, फ़ौरन ही जैसे वो फ्रांस गया, पहुंचा, ही हैड टू गो इन टू द लाइन, उसको फिर मोर्चे या सरहद पे जाना पड़ा। एंड 8 days लेटर, और फिर 8 दिन के बाद, ही वॉज किल्ड, उसको मार दिया गया, जस्ट ओब्लिटरेटेड,
और मिटा दिया गया उसको, एज यू से, जैसा कि तुम कहते हो। ओब्लिटरेट का वर्ड प्रोफेसर कोरी के लिए कह रही है कि जैसे तुम कहते हो कि ये जो बॉम्ब है ये लोगों को ओब्लिटरेट कर देगा, तो इसी तरह से मेरा बेटा भी मिटा दिया गया बिल्कुल। बाय मेन हु हैड नेवर सीन हिम, उन लोगों की तरफ से, उन लोगों ने मेरे बेटे को मारा जिन्होंने कभी इसको देखा भी नहीं। हु डिडंट इवन नो दैट दे हैड किल्ड हिम, और उनको यहाँ तक नहीं, ये भी नहीं पता कि उन्होंने उसको मार दिया, हत्ता कि उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने एडी को मार दिया। एंड ऑल माई ईयर्स ऑफ लव एंड होप एंड डिजायर एंड पेन गॉन, और मेरे सारे साल मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाहिश और दर्द के गुजर गए। आई हैड नर्स्ड हिम एंड केयर्ड फॉर हिम एंड टॉट हिम लिटिल लेसन्स, मैंने उसकी परवरिश की, नर्स्ड परवरिश, एंड केयर्ड और उसका ख्याल रखा, एंड टॉट हिम लिटिल लेसन्स और उसको छोटे जिंदगी के कुछ सबक सिखाए, एंड बीन प्राउड ऑफ हिम और उस पर फ़ख्र किया। एंड देन इन अ मोमेंट माई ब्यूटिफुल सन वॉज obliterated हेनरी, और फिर एक लम्हे में मेरा छोटा प्यारा बेटा मिटा दिया गया, फना कर दिया गया हेनरी। देर इज़ अ स्लाइट पॉज वाइल शी रिकवर्स herself, अब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये राइटर हमें बता रहा है कि अब स्लाइट पॉज, थोड़ा सा वक्फा है, उस वक्फे के बाद में वो अपने आप को दोबारा रिकवर कर रही है, संभाल रही है। यू सी डोंट यू हेनरी दैट आई कांट टेक अ ब्रॉड व्यू ऑफ दैट, तुम देखो हेनरी कि मैं, तुम्हें अब लगेगा कि मैं इस चीज़ का वसी नुक्ता नज़र से इस चीज़ को नहीं देख सकती। आई कैन ओनली सी माई सन्स बॉडी म्यूटिलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड, दैट्स ऑल, कि मैं सिर्फ अपने बेटे की जिस्म को मसशुदा और तबाहशुदा हालत में देख सकती हूँ, और बस मुझे और कुछ नज़र नहीं आता, इससे मेरा ब्रॉड व्यू और है ही नहीं। आई कैन ओनली सी माई सन्स बॉडी। कॉरी, वेल ऑफ कोर्स आई क्वाइट सी योर पॉइंट ऑफ व्यू शार्लेट। कॉरी कहता है कि यकीनन मैं तुम्हारा नुक्ता नज़र बिल्कुल समझ सकता हूँ शार्लेट। इट इज़ हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, आई एडमिट दैट, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, मैं मानता हूँ। बट वी हैव टू कीप आवर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल, लेकिन हमें अपने एहसासात को काबू में रखना होगा। इन आफ्टर ऑल, और आखिरकार, देयर इज़ द कंसोलेशन दैट एडी डिड हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, और फिर उसके बाद एक कंसोलेशन की बात है, तसल्ली बख्श बात है कि एडी अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अपने मुल्क के लिए उसने जान कुर्बान की, तो अब तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए इस बात पे। वो कहता है कि आई डेयर से ही अकाउंटेड फॉर अ गुड मैनी जर्मन्स, वो कहते हैं कि मैं इस बात को कहने की जुर्रत कर सकता हूँ, डेयर, जुर्रत करना, कि एडी ने बहुत सारे, अ गुड मैनी जर्मन्स का मतलब बहुत बड़ी तादाद में जर्मन्स को मारा होगा, हलाक किया होगा, अकाउंट फॉर, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में उनको हलाक किया होगा। मिसेस मेल्टन, दैट डजंट कम्फर्ट मी हेनरी, मिसेस मेल्टन कहती है कि हत्ता कि ये चीज़ भी मुझे तसल्ली नहीं दे रही, यानी ये बात तो तसल्ली बख्श होनी चाहिए कि तुम्हारे बेटे ने बहुत सारे दुश्मनों को मारा है, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है, तो वो कहती है कि ये बात भी मेरे लिए तसल्ली बख्श नहीं है। आई कांट गेट प्लेयर आउट ऑफ द थॉट दैट सम पुअर जर्मन वुमन इज सफरिंग जस्ट एज आई एम सफरिंग, वो कहती है कि मैं इस सोच से खुशी हासिल नहीं कर सकती, प्लेयर खुशी, आउट ऑफ द थॉट इस सोच से कि कोई कोई गरीब जर्मन माँ भी इसी मुश्किल में, इसी तकलीफ़ में होगी जिस तकलीफ़ में मैं हूँ। यानी अगर एडी ने किसी को मारा है तो वो भी किसी माँ का बच्चा होगा ना, उसकी माँ भी इतनी तकलीफ़ में होगी जितनी कि तकलीफ़ में मैं हूँ, तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ कि मेरे बेटे ने किसी को मारा है। मैं तो उसकी तकलीफ़ भी महसूस कर सकती हूँ कि मेरे बेटे ने किसी को मारा है, तो उसकी माँ की तकलीफ़ को मैं महसूस कर सकती हूँ। तो देखें आप, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, पीसफुल अप्रोच है मिसेस मेल्टन की, और दूसरी तरफ जो प्रोफेसर कोरी है उसकी रिवेंज की अप्रोच है कि अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो उसने बदला तो लिया है ना, वो कहता है पहले उसने भी मारा होगा उनको, तो वो उसकी रिवेंजफुल अप्रोच है। अच्छा, नो हेनरी, आई फील दैट आई वुड वांट टू टेक साइड्स विद हर अगेंस्ट मेन लाइक यू, वो कहती है कि मैं, हेनरी, मैं समझती हूँ कि मैं उनका साथ दूंगी, कि इनका वो जो जर्मन, यानी चाहे दुश्मन मुल्क की माएँ हैं, लेकिन मैं उनका साथ दूंगी अगेंस्ट मेन लाइक यू, तुम जैसे लोग, मर्दों के खिलाफ, तुम जैसे जो मर्द हैं जो बॉम्ब बनाते हैं, जो जंग को शुरू करते हैं, जंग का सबब बनते हैं, मैं उनके खिलाफ जाके उन माओं का साथ दूंगी, चाहे वो दुश्मन के बच्चों की माँ ही क्यों ना हो। दर्द तो उसका उतना ही है, उसका बेटा भी मारा गया, तो मैं उसका साथ दूंगी। कोरी कहता है मैन लाइक मी, कि मेरी तरह मर्दों के खिलाफ। मिसेस मेलन कहती है यस, हाँ, पीपल विद ब्रॉड व्यूज, तुम जैसे मर्दों के खिलाफ जिन जो वसी नुक्ता नज़र की बात करते हैं। बिकॉज यू आर सच फूल्स, क्योंकि तुम ऐसे बेवकूफ़ हो। समवन लाइक मी नॉट क्लेवर क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक माई सन, वो कहती है कि समवन लाइक मी, कोई मेरी तरह, नॉट क्लेवर, अक्लमंद ना हो, और फिर भी क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक माई सन, एक खूबसूरत चीज़ को तख्लीक करता है जैसे कि मेरा बेटा।
यानी हम जो माएँ होती हैं क्लेवर नहीं होती, लेकिन खूबसूरत चीज़ को तहलीक करती हैं, बेटों को तहलीक करती हैं। एंड यू विद ऑल योर क्लेवरनेस कैन ओनली डिस्ट्रॉय इट। और तुम अपनी सारी अक्लमंदी के साथ सिर्फ इस चीज़ को तबाह कर सकते हो, जो खूबसूरत बेटा हम तहलीक करते हैं। तुम इतने अक्लमंद हो कि तुम उस खूबसूरती को डिस्ट्रॉय करते हो, तबाह करते हो। तो अब तंज करिए कि तुम अक्लमंद हुए या हम अक्लमंद हैं, या तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो। That's why I think your cleverness can only destroy it. You are a fool, Henry. कहती है कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हारी जो अक्लमंदी है वो सिर्फ इस चीज़ को तबाह कर सकती है। तो तुम एक बेवकूफ़ हो, हेनरी। कोरी नेटल्ड, नेटल का मतलब गुस्से में होते हुए। वेल ऑफ कोर्स शार्लेट, विद योर व्यूज़, कहता है कि यकीनन शार्लेट, तुम्हारे जैसे ख्यालात के लोग, आई कैन हार्डली एक्सपेक्ट यू टू अप्रिशिएट माई वर्क। तुम्हारे ख्यालात को देख के मैं ये तवक्को बिल्कुल नहीं रखता कि तुम सराहोगी, तारीफ़ करोगी। अप्रिशिएट, तारीफ़ करना, सराहना, माई वर्क, मेरे काम को। बट आई फैंसी दैट माई कंट्रीमैन, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे मुल्क के लोग, इफ़ दे हैव एनी सेंस, अगर उनमें कुछ अकल है, विल नो हाउ टू वैल्यू मी। वो जानते हैं, वो जानेंगे, उनको पता चल जाएगा कि किस तरह मेरी कदर करनी है। विल मेक माई नेम नोन टू द मोस्ट इग्नोरेंट मैन इन द कंट्री। वो मेरे नाम को मशहूर बनाएंगे। टू द मोस्ट इग्नोरेंट मैन इन द कंट्री, मुल्क के सबसे जाहिल तरीन आदमी को भी मेरा नाम आ जाएगा, और ये सारे लोग मुझे मशहूर बनाएंगे। ये सारे लोग मुझे मशहूर बनाएंगे ताकि मुल्क के जो जाहिल तरीन आदमी है, जिसको साइंस का, इन्वेंशन का, बॉम्ब का नहीं पता, वो भी मेरे नाम को जानना शुरू हो जाएगा। पीपल विल टॉक अबाउट द कॉरी बॉम्ब, लोग फिर कॉरी बॉम्ब के बारे में बात करना शुरू करेंगे। जस्ट, यानी इतना फेमस मेरा नाम हो जाएगा। जस्ट एज दे यूज टू टॉक अबाउट द मिल्स बॉम्ब ड्यूरिंग द वॉर, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो मिल्स बॉम्ब, मिल्स जो कि जिसने पहले बॉम्ब ईजाद किया था और जो पहले वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुआ है, उसकी बात कर रहा है। कि जैसे लोग मिल्स बॉम्ब के बारे में बात करते थे जंग के दौरान, इसी तरह नेक्स्ट जो जंग होगी उसमें कोरी बॉम्ब की तारीफें करेंगे सब, उसी के बारे में बात होगी। आई शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लंप सम इन पेमेंट ऑफ द इन्वेंशन, बिकॉज वो कहते हैं कि मुझे एक बहुत ज़्यादा रकम जो है, खतीर रकम, मुआवजे के तौर पे मुझे, लंप सम का मतलब है यकमुश्त रकम। यकमुश्त यानी एक ही दफ़ा जो अदा की जाती है, पे की जाती है एक ही जगह पे, एक ही दफ़ा, एक जो सारी कीमत है कि एक दफ़ा पे की जाती है, उसको लंप सम कहते हैं। और रॉयल्टी वो होती है जिसमें, यानी अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई बॉम्ब इन्वेंट किया है, तो वो उस बॉम्ब को, बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स उसने बनाए हैं, तो अपने पहले बॉम्ब के कुछ पैसे लेगा, फिर उसी सीरीज़ में फिर दूसरा बॉम्ब इन्वेंट करेगा, उसके अलग से पैसे मिलेंगे, तीसरा, चौथा। तो ये कहता है कि मैं तो एक ही दफ़ा लंप सम में पैसे लूँगा, सारे पैसे एक ही दफ़ा लूँगा, क्योंकि मैं अब आगे हम देखेंगे कि वो कहता है कि मिल्स जो था, मिल्स ने बहुत सारे बॉम्ब्स बनाए थे, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और वो छोटे बॉम्ब थे, यानी वो छोटे बमों को बेच के तो पैसे हर दफ़ा से अलग पैसे लेता था। तो क्योंकि मेरा बॉम्ब तो एक ही बॉम्ब काफ़ी होगा दुनिया को मिटाने के लिए, शहरों को मिटाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको तो, इसमें तो रॉयल्टी की बात ही नहीं सकती, कि क्योंकि एक ही बॉम्ब तबाह कर देगा सब कुछ को। तो मैं एक ही बॉम्ब की बहुत बड़ी कीमत जो है, लंप सम में, एक ही यकमुश्त कीमत में मुआवजा लूँगा ऑफ द इन्वेंशन, अपनी ईजाद का। बिकॉज रॉयल्टी वुडंट पे मी एट ऑल, क्योंकि जो बार बार रकम दी जाएगी मुझे, किस्तों में रकम दी जाएगी, वो मेरे मुआवजा इतना अच्छे तरीके से अदा नहीं हो सकेगा उससे। मिल्स गोट अ रॉयल्टी, मिल्स को रॉयल्टी मिलती थी ऑन ईच ऑफ हिज बॉम्ब, अपने हर एक बॉम्ब पे उसको मुआवजा अपने हर बॉम्ब पे मिलता था। बट देन दे वर स्मॉल, लेकिन वो जो उसके बॉम्ब थे वो छोटे थे, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, लाखों की तादाद में थे, ऑफ देम वर यूज, जो लाखों की तादाद में उनका इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए उसकी रॉयल्टी में अच्छे खासे पैसे बन गए थे। माई बॉम्ब्स विल बी बिग, मेरे बॉम्ब बड़े होंगे, एंड वन ऑफ देम विल सफाइस फॉर सिटी, और इनमें एक ही शहर के लिए काफ़ी होगा। सफाइस, काफ़ी, इनफ, एक शहर के लिए एक बॉम्ब काफ़ी होगा। येस आई शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लंप सम, और वो कहता है कि इसीलिए मुझे एक बड़ी खतीर रकम की डिमांड की मांग करनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए। नाउ दैट दे आर स्पेंडिंग सेवरल मिलियन पाउंड्स ऑन अ बैटलशिप दैट इज जनरली बिलीव टू बी यूजलेस, अब, नाउ, अब, दैट दे आर स्पेंडिंग, जबकि वो खर्च कर रहे हैं, सेवरल मिलियन पाउंड्स, कई मिलियन पाउंड्स, ऑन अ बैटलशिप, जंगी जहाज़ के ऊपर, दैट इज जनरली बिलीव टू बी यूजलेस, जो कि आमतौर पर समझा जाता है बेकार। यानी एक बेकार सा जंगी जहाज़, जो आमतौर पे बेकार सा जंगी जहाज़ समझा जाता है, उसके ऊपर अगर मुल्क मिलियन पाउंड्स खर्च कर रहा है, तो मेरा बॉम्ब तो बहुत कीमती है। तो आई एम इंटाइटल टू आस्क फॉर वेरी लार्ज सम, वो कहते हैं कि मेरा तो हक बनता है, आई एम इंटाइटल टू आस्क फॉर अ वेरी लार्ज सम, कि मैं खतीर रकम का मुतालबा करूँ फॉर माई बॉम्ब, अपने बॉम्ब के लिए, विच विल सर्टनली डिसाइड द वॉर, जो कि यकीनी तौर पर जंग का फैसला करेगा। यानी इतनी कीमती चीज़ है, तो इसलिए तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी रकम बनती है। आई वंडर हाउ मच आई ऑट टू आस्क फॉर, कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना मांगूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। शार्लेट, हाउ मच ऑट आई टू आस्क फॉर, कहते हैं कि मुझे कितना मुतालबा करना चाहिए, कितनी रकम मांगनी चाहिए, मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। दे डोंट
दे वोंट गिव मी व्हाट इट्स वर्थ। ये बात तो वो कहते हैं यकीनी है कि जितनी इसकी कीमत है वो उसका इतना मुआवजा नहीं दे सकेंगे, यानी ये बेकीमत है, इसका कोई मुआवजा अगर हुकूमत अदा भी करना चाहे तो नहीं अदा कर सकती, ये बात तो यकीनी है। दैट्स एब्सोल्युटली सर्टन, ये बात तो बिल्कुल यकीनी है। दे माइट पे अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन, शायद वो मिलियन का चौथाई हिस्सा मुझे अदा अदा कर पे कर लें, मुझे वो दे दें मिलियन का, 1 मिलियन का चौथाई हिस्सा। शार्लेट, व्हाट वुड यू आस्क फॉर इफ़ यू वर मी। वो कहता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो शार्लेट को कह रहा है कि तुम अगर मेरी जगह होती शार्लेट, तो तुम क्या मुतालबा करती, इफ़ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होती। वो कहती है कि आई शुड आस्क फॉर माई सन, मैं अपने बेटे का मुतालबा करती, मुझे और पैसों का मुतालबा ना होता, मैं अपने बेटे का मुतालबा करती। वो कहता है कि नाउ 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 शार्लेट, नॉट अगेन प्लीज़। कहते हैं कि अब शार्लेट बस कर दो, दोबारा इस बात को ना शुरू करो। नॉट अगेन, दोबारा नहीं। यू मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर, हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। नॉट ऑफ द पास्ट, माजी को भूल जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर टू मच, मैं बहुत ज़्यादा रकम नहीं लेना चाहता, मुतालबा नहीं करना चाहता, टू मच बहुत ज़्यादा। बिकॉज आई शेल नॉट गेट इट, आई शेंट, शेंट इज़ द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ शेल नॉट। आई शेंट गेट इट, क्योंकि मैं, ये मुझे नहीं मिलेगी। एंड आई डोंट वांट टू आस्क फॉर टू लिटिल, और मैं बहुत कम भी नहीं मांगना चाहता। दो आई विल प्रोबब्ली गेट दैट एनी हाउ, और मुझे यकीन है मुमकिन तौर पर मुझे जो कम मुतालबा मैं करूँगा वो मिल जाएगा, लेकिन मैं इतना कम मुतालबा भी नहीं करना चाहता। व्हाट डू यू थिंक शार्लेट, तुम क्या सोचती हो शार्लेट। डू यू थिंक इट वुड बी बेटर टू लेट देम नेम अ प्राइस, क्या ये बेहतर होगा कि ये बात उन्हीं पे छोड़ दी जाए कि वो कीमत का तयन खुद करें। नेम अ प्राइस का मतलब यानी हुकूमत खुद ही कीमत का तयन करे कि कितनी कीमत वो देंगी, तो क्या ये ख्याल ठीक है। तो शार्लेट, मिसेस मेल्डन कहती हैं कि आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता। वो कहता है कि वेल यू माइट टेक अ लिटिल इंटरेस्ट इन द मैटर, वो कहता है कि तुम इस मामले में, तुम्हें थोड़ी सी दिलचस्पी लेनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए बहुत अहम है। दे ऑट रियली टू गिव मी अ टाइटल टू, उनको चाहिए कि वो मुझे ख़ताब भी दें, यानी पैसों के साथ साथ जो मनी मुझे मिलेगी उसके साथ साथ मुझे एक ख़ताब दिया जाए जो कि पूरे मुल्क में मशहूर हो कि ये इस आदमी ने इस तरह की इन्वेंशन की, तो उसको ये टाइटल दिया गया। सपोजिंग आई से अ कपल ऑफ 100,000 पाउंड्स, कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि मैं कहता हूँ कि मुझे दो, कपल ऑफ का मतलब है दो या चंद, यानी चंद लाख या 2 लाख पाउंड्स का मैं मुतालबा करूँ। एंड अ पीरेज, पीरेज का मतलब होता है ओहदा या रुतबा, और उसके साथ साथ मुझे कोई ओहदा दिया जाए या कोई मुझे रुतबा दिया जाए, तो ये क्या मुतालबा, ये वाला मुतालबा ठीक रहेगा। तो मिसेस मेल्टन कहती हैं व्हाई नॉट से 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें 30 चांदी के सिक्के दिए जाएं, यानी तंजिया तौर पर कह रही है, ठीक है, यानी रिश्वत के तौर पर तुम्हें 30 चांदी के सिक्के दिए जाएं, कि तुम इतनी बड़ी रकम का मुतालबा कर रहे हो, तो तुमने इतनी कोई खास चीज़ तो नहीं बनाई है, तो डिस्ट्रक्शन के लिए है, तो तुम्हें 30 ही सिक्के मिलने चाहिए चांदी के। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा जो आज का लेक्चर था, नाउ विल try to sum it up in few possible points. So here is the first point. So in today's lecture we saw that Mrs. Meldon describes the qualities of Eddie, कि वो कितना खूबसूरत हैंडसम था और किस तरह से वो उस पे ऊपर प्राउड करते थे, ठीक है। एंड देन फैमिली वाज प्राउड ऑफ एडी बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। And then Eddie became a grown up man with extraordinary knowledge when Eddie left Oxford and went to France. तो जब वो वापस अपनी फर्स्ट लीव पे वापस घर आया तो ही वॉज अ ग्रोन अप मैन, और बहुत सारा उसके पास नॉलेज, एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज आ गया था। एंड मिसेस मेल्डन एक्सप्रेस्ड हर फियर ओवर Eddie's going to France, and we can also see that she was quite afraid over the fact that he would not be able to come back home. But still, she managed to smile because she did not want to make him belittle in front of other people, ठीक है। तो इसलिए उसने उसको स्माइल करके रुखसत किया कि शी वांटेड टू बी शी seemed to be a brave lady, ठीक है। एंड शी was actually pretending to be brave. Mrs. Meldon, उसके बाद फिर प्रोफेसर कोरी tried to console Eddie, tried to console Mrs. Meldon. Mrs. Meldon को कंसोल करने की, यहाँ पे मिस्टेकनली स्टूडेंट्स एडी लिखा हुआ है, इसको आपने मिसेस मेल्डन करना है, क्योंकि वो कंसोल इसलिए कर रहा है कि एडी fought for his country and he also killed many of the Germans. So Mrs. Meldon should not be worried about, she should not be so worry about she should not worry about Eddie's death so much. Mrs. Mellon took side with victims of war against men like Corey. And उसके बाद एक और important point है कि Corey thinks that his countrymen will appreciate his invention and he is planning to get his payment in lump sum.
ओके स्टूडेंट, सो इस होमवर्क की बेस पे योर इस लेक्चर की बेस पे योर होमवर्क इज टू राइट अ समरी ऑफ टुडेज लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड पॉइंट्स। सो ये ऊपर जो आज का लेक्चर है इसकी समरी की फॉर्म में ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन्हीं को आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में, ब्रीफ सा पैराग्राफ, आज के लेक्चर का समरी आपने लिखनी है सेपरेट शीट के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।